Good evening, students of class 7. I am S.K. Mitra of DAV CCL Giridi. Today, once again, I am here with another lesson from the chapter Heat. In the last session, we discussed few topics from the chapter Heat, and today we will discuss rest of the topics of this chapter. So students, you listen very carefully, then only you will understand. So let us begin. Now students, in the last class we discussed temperature and measuring of temperature, in which we also discussed that there are two types of scales used for measuring temperature, and these are Celsius scale and Fahrenheit scale. Now the instrument which is used for measuring temperature is a thermometer. Now thermometer normally is of two types. One is called laboratory thermometer, another is clinical or doctor's thermometer. So laboratory thermometer, we have discussed that it is a thermometer in which the temperature range is from -10 to 110 degrees Celsius. Today we will discuss about doctor's thermometer or clinical thermometer. First of all, we should know why its name is given doctor's thermometer or clinical thermometer. This thermometer is specially used for measuring body temperature when we have fever, and that's why this thermometer is named as doctor's thermometer or clinical thermometer. In this thermometer, it is quite small in size and compared to the laboratory thermometer, and the range of temperature in this thermometer is 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Means range of temperature is small, because our body temperature varies in between these two temperatures. It neither increases above 42 or not decreases below 35. That's why this range is used. Of course, the thermometer which is used in our house, it is graduated in Fahrenheit scale, and that is 98.6 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. But if in degree Celsius it is taken, the values are 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Now this thermometer has a special characteristic, a difference with laboratory thermometer. That is, in this thermometer there is a thin tube in both the thermometers. There is a thin tube at the center called capillary tube. In laboratory thermometer, this tube is throughout the bulb, it is straight, but in clinical thermometer, just above the bulb there is a slight bend और constriction. बल्ब के ठीक ऊपर वाली पार्ट में अगर गौर से हम देखेंगे तो अंदर की जो पतली ट्यूब है, जिसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, वो थोड़ी सी बेंड होती है. तो वाई दिस बेंड इज केप्ट, इस बेंड को रखने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब हम इस थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो या तो हम इस बल्ब को जीभ के अंदर रखते हैं या अंडर आर्म में रखते हैं, जहाँ पर बॉडी की टेम्परेचर अधिक होती है. तो जैसे ही ये टेम्परेचर से मरकरी राइज करती है ऊपर कैपिलरी ट्यूब में, और जब हम उस थर्मोमीटर को वहाँ से हटा लेते हैं, तो ये मरकरी लेवल नीचे नहीं गिर पाती. ड्यू टू दिस बेंड वो नीचे नहीं गिर पाती. तो उस मरकरी लेवल को सही टेम्परेचर पे रोके रखने के लिए ये बेंड जरूरी होता है. अगर सीधा रहता लेबोरेटरी थर्मोमीटर की तरह, तो मुंह से निकालते निकालते इसकी टेम्परेचर मरकरी लेवल जो है वो गिर जाती है और हम सही टेम्परेचर नहीं मेजर कर पाते. तो इसलिए ये बेंड या कंस्ट्रिक्शन रखी गई है. क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई दिस बेंड और कंस्ट्रिक्शन इज केप्ट इन क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो इसका रीज़न वही है. अब हम लोग यहाँ पर जो थर्मोमीटर दिखाई गई है, ये मरकरी नहीं है, ये डिजिटल थर्मोमीटर है. इसमें टेम्परेचर
डिजिट्स में आती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, लेकिन हम लोग जो थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं वो मरकरी थर्मोमीटर है, जो जिसमें मरकरी यूज़ की जाती है। तो थर्मोमीटर के बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारी जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह में। हीट की ट्रांसफ़र को महसूस करने के लिए हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के द्वारा कर सकते हैं। जैसे हम जब एक कप गर्म चाय या मिल्क में एक चम्मच से शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, तो चम्मच को थोड़ी देर तक उसमें चलाते रहने के बाद हम देखते हैं कि चम्मच की जो दूसरी एंड है वो भी हल्की सी गर्म हो जाती है। या हम चूल्हे या गैस पर किसी पैन को, फ्राइंग पैन को रखे हुए हैं, तो धीरे धीरे उसके हैंडल वाली पार्ट भी गर्म होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हीट हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर ट्रांसफ़र होती है। हॉटर पार्ट यानी जहाँ पर हम रखे हैं चूल्हे पर या गैस पर, वहाँ से हीट उस पार्ट की ओर ट्रांसफ़र होती है जो पहले ठंडी थी, अब धीरे धीरे उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है। तो इससे ये एक तरीका है। दूसरा कि अगर हम किसी आग के सामने, जलती हुई आग के सामने खड़े होते हैं, तो हम उस हीट को फील कर सकते हैं, उससे निकलती हुई गर्मी को हम महसूस कर सकते हैं। यानी वहाँ भी हीट उस आग से हमारी बॉडी तक ट्रांसफ़र हो रही है। अब उस ट्रांसफ़र के कारण हम उस हीट को समझ पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं। फिर अगर हम एक मेटल के बने चेयर को धूप में रख दें काफ़ी देर तक, तो बहुत गर्म हो जाती है। अगर गर्मी की समय है और उसमें हम अगर बैठना चाहें तो हम बैठ नहीं सकते, इतनी गर्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। अब हम लोग देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, उसकी कौन कौन सी प्रोसेस है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र की, वो है कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए हम एक छोटी सी यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 5, उसको देखेंगे। कंडक्शन प्रोसेस, इससे पहले हम लोग जान ले कि हीट ट्रांसफ़र का 3 प्रोसेस है। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। हम लोग एक एक करके इन तीनों प्रोसेस को पढ़ेंगे। कंडक्शन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हीट सॉलिड मटेरियल के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जब मटेरियल सॉलिड होती है तो हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होती है इसी प्रोसेस से, यानी बाय द कंडक्शन प्रोसेस। सॉलिड में क्या होती है, हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो क्लोजली पैक्ड होती है, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड होती, सटे हुए होते हैं। तो जब हम किसी पार्ट को हीट पे रखते हैं तो पहले उस पार्ट के मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं, फिर वो अपनी एनर्जी, हीट को दूसरे अपने नियर बाई मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो अपने नियर बाई को ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से हीट आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। तो इस प्रोसेस से जब हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड में, तो उसको हम कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ जो एक्टिविटी दी गई है, इसमें क्या की गई है कि एक मेटल की रॉड ले ली गई है और मेटल रॉड में पहले से मोम को, वैक्स को पिघलाकर उसकी एक लेप लगा दी गई है। ठीक है, अब उस लेप को लगाते समय थोड़ी थोड़ी दूर में एक एक आयरन का पिन, पेपर पिन को साट दी गई है मोम के साथ। अब इस रॉड को हम 2 बुक्स या 2 ब्लॉक के बीच रखेंगे और इसके एक एंड को एक कैंडल जलाकर या एक बर्नर जलाकर उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हम क्या देखेंगे कि ये कैंडल जो है, वैक्स जो है वो पिघलना शुरू करेगा और एक एक करके ये पिन गिरना स्टार्ट करेगा। इससे समझ में आ रही है कि हीट इधर से इस तरफ ट्रांसफ़र हो रही है और हीट के कारण वो मोम जो है वो पिघल जा रही है और मोम पिघलते ही ये पिन नीचे गिर जा रही है।
तो इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ पा रहे हैं कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड टू अनदर एंड, एंड रॉड इज ए सॉलिड मटेरियल, सो द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन। इसमें होता क्या है, पहले यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स हीट होते हैं, फिर वो अपने सटे हुए दूसरे मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स अपने नियर बाई मॉलिक्यूल्स के को हीट ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे हीट आगे बढ़ती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है। अब अगर हम देखें क्या कंडक्शन प्रोसेस से हीट सभी सॉलिड से ट्रांसफ़र होती है, तो उसके लिए हम ये मेटल रॉड के बजाय अगर हम एक लकड़ी का स्टिक ले लें और उसमें भी ये मोम का लेयर लगा दें, उसमें पिन लगा दें और उसके एक एंड को गर्म करें, तो क्या इसमें मोम पिघलेगा और एक करके ये पिन्स गिरेंगे? तो एवरीबॉडी विल से नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वुड एक ऐसी मटेरियल है जिससे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। तो सभी मटेरियल से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। जिस मटेरियल से हीट ट्रांसफ़र होती है, लाइक मेटल्स, दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और जिससे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती उसे हम कहते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और हीट इंसुलेटर्स। सो वुड इज ए हीट इंसुलेटर। ऐसी और बहुत सारे मटेरियल है जो हीट इंसुलेटर्स हैं। हम लोग देखे हैं कि घर में इस्तेमाल होने वाले जो यूटेंसिल्स हैं, जैसे सॉस पैन हुआ, प्रेशर कुकर हुआ, उसकी जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक जैसी मटेरियल से कवर्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब वो गर्म हो जाती है तो उसको हम आसानी से पकड़ सकें। उसकी हैंडल गर्म होने के बाद भी उसके ऊपर जो प्लास्टिक जैसी कवर लगी है वो गर्म नहीं होती है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है और वो ठंडी रहती है, जिससे हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। ये तो गई कंडक्शन। अब ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में दी गई है कि जिससे हम कंडक्शन से हीट प्रोसेस ट्रांसफ़र के प्रोसेस को समझ सकते हैं। जैसे हम घरों को बनाते समय ब्रिक और मड या ब्रिक सीमेंट यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होती है कि ब्रिक जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो ब्रिक से बनने के बाद ये हमारी जो घर है वो हीट को आने नहीं देगा, हीट से वो जल्दी गर्म नहीं होगा, जिससे हमारी घर के अंदर की टेम्परेचर कम रहेगी। ठीक है। फिर एयर इज ऑल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इससे क्या होता है कि हम सर्दियों की मौसम में जितने भी उलन कपड़े पहनते हैं, स्वेटर्स, कोट, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, उन सभी में एयर भरी रहती है। ठीक है। और जब हम शरीर पे उसको ओढ़ लेते हैं तो बाहर की टेम्परेचर उसमें कम होती है, तो टेम्परेचर की फ्लो कहाँ से कहाँ होती है हम बताएं, हॉटर टू कोल्डर। तो हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलना चाहती है, लेकिन जब हम उसको उलन क्लोथ से कवर कर लेते हैं तो उलन क्लोथ में जो एयर भरी हुई रहती है वो एयर हीट को बाहर जाने नहीं देता, क्योंकि एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है जब तक हम स्वेटर या ब्लैंकेट्स को पहने या ओढ़े रहते हैं। सेकेंड प्रोसेस है कन्वेक्शन। ये प्रोसेस लिक्विड या गैस के थ्रू हीट की ट्रांसफ़र होते समय इस प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होती है। पहला था कंडक्शन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू सॉलिड। सेकेंड इज कन्वेक्शन, बाय दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर थ्रू लिक्विड और गैस। इसमें क्या होता है कि लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल्स सॉलिड के अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। लिक्विड में कुछ दूर, गैस में और दूर दूर होते हैं। इसलिए लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती है, वो हमेशा मूव करता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हीट की ट्रांसफ़र होती है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के कारण होती है। सॉलिड में मूवमेंट नहीं होती है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स सिर्फ हीट एनर्जी को अपने नियर बाई मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स खुद चलकर हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। यहाँ भी एक एक्टिविटी देख रहे हैं हम लोग। इसमें क्या कहा है कि हम लोग एक राउंड ये
इसका नाम है राउंड बॉटम फ्लास्क। ऐसा एक शीशे का बना राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, उसमें पानी ले लेंगे और थोड़ी 2-4 दाना हम पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल है उसको ले लेंगे, जो पर्पल कलर की होती, बैंगनी कलर की। जैसे ही पानी के अंदर हम लेंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे बैंगनी कलर का छोटी छोटी बबल्स निकल कर नीचे से ऊपर की ओर आने लगेगा, यानी वो घुलना शुरू होगा पानी। अब हम इसको नीचे से गर्म करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगी। नीचे से एयर बबल्स पर्पल कलर की वो ऊपर की ओर आ रही है और ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, दोनों तरफ से ये फॉर्मेशन होने लगे। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे ये पूरा पानी का कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा और पानी गर्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पर किस प्रोसेस से ट्रांसफ़र हो रही हीट? पहले यहाँ का पानी गर्म हो रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म होते ही वो हल्की हो जा रही है, हल्की होने से वो ऊपर जा रही है और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो कंपैरेटिवली ठंडी है और भारी है तो वो नीचे आ रही है, फिर वो गर्म हो रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो इस तरह से जब हीट का ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू लिक्विड एज वेल एज गैस। गैस में भी हीट ट्रांसफ़र इसी प्रोसेस से होती है, उसमें भी मॉलिक्यूल्स हीट को एक जगह से ले जाकर दूसरे जगह पहुंचाते हैं। और जब लिक्विड या गैसेस में हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्शन प्रोसेस से होती है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसे कहते हैं हम कन्वेक्शन करेंट्स। अब इस कन्वेक्शन करंट से कुछ चीज़ें और भी इस नेचर में होती है, उसको हम लोग देखेंगे। वी मेक कंसिडरेबल यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट इन आवर डेली लाइफ। द यूज ऑफ विंडोज एंड वेंटिलेटर्स इन रूम। घरों में हम खिड़कियां या वेंटिलेटर्स रखते हैं, किस लिए? ताकि घर के अंदर की जो हीट है वो बाहर निकल जाए और बाहर से जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर आए। तो ये प्रोसेस कन्वेक्शन ही है जिसके द्वारा ये होती है। यूज़ ऑफ चिमनीज इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में लंबी लंबी ऊंची ऊंची चिमनी लगी रहती है जिससे स्मोक बाहर निकल जाती है। रेडिएटर्स इन कार। कार की रेडिएटर्स होती है जो कार के इंजन को ठंडा रखता है। तो इन सभी में कन्वेक्शन करंट की प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र की जाती है। कन्वेक्शन करेंट्स ऑल्सो हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेदर। हमारी इस वेदर में कन्वेक्शन करंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैसा रोल होता है? When the air at a place gets heated up, जब किसी जगह का हवा गर्म हो जाती है तो वो लाइटर यानी हल्की हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है। जैसे ही ऊपर उड़ जाती है तो वहाँ पर बन जाती है वैक्यूम, खाली जगह। तब क्या होती है कि दूर से तेज़ी से हवा आती है, ठंडी हवा, और उस खाली जगह को भरती है। तो इस ठंडी हवा का आना, इसी को हम कहते हैं विंड या स्टॉर्म्स, है ना। ये स्टॉर्म जब बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है तो वो स्टॉर्म कहलाती है, और नॉर्मल स्पीड से आती है तो विंड कहलाती है। तो ये विंड या स्टॉर्म का फॉर्मेशन कन्वेक्शन करंट से ही होता है। अब ग्लोबल विंड पैटर्न, जो हवाएं चलती हैं ये कन्वेक्शन करंट के कारण ही चलती हैं। इसको यहाँ देखो बताया गया है। इट इज़ ईजी टू रियलाइज दैट देयर वुड ऑलवेज बी एन अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ, पूरी अर्थ एक जैसा गर्म नहीं होता है। अर्थ का कोई भाग ज़्यादा गर्म होता है, कोई भाग कम गर्म होता है। जैसे जो इक्वेटर के नज़दीक वाले पार्ट हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, पोल्स के नज़दीक वाले पार्ट कम गर्म होते हैं, वो बल्कि काफ़ी ठंडा रहता है। तो इसके कारण, अनइवन हीटिंग के कारण ये विंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे ग्लोबल विंड पैटर्न कही गई है। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट। इक्वेटर के पास आसपास की जगह सबसे ज़्यादा गर्म होती है फ्रॉम द सन। सन से सबसे ज़्यादा हीट मिलती है इसे। द एयर एट दीज प्लेसेस गेट्स हीटेड अप, राइज एंड दस लीव्स ए लो प्रेशर एरिया बिहाइंड इट। यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है और वहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। द कूलर एयर मेनली फ्रॉम प्लेसेस बिटवीन 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड द इक्वेटर देन मूव्स टूवर्ड। और जैसे ही गर्म हवा ऊपर चली जाती है तो ठंडी जगह से हवाएं आती हैं इस जगह को भरने के लिए।
और इस तरह से विंड की फॉर्मेशन होती है। दिन भर हवाएं चलती रहती है और हवा चलने की यही कारण है, यानी कन्वेक्शन करंट। अब हम लोग लैंड और सी ब्रीज के बारे में जानेंगे। लैंड और सी ब्रीज क्या है? ये भी हवाएं हैं, लेकिन कौन सी हवा, किस तरफ से बहने वाली हवा, वो हम लोग जानेंगे। दिन के समय जमीन जो है लैंड वो काफ़ी गर्म हो जाती है, लेकिन पानी धीरे धीरे गर्म होती है। तो अगर हम किसी रिवर के साइड में या लेक के साइड में जाते हैं तो हम वहाँ पाते हैं कि ज़मीन जो है लैंड काफ़ी गर्म रहती है और पानी की सरफेस जो है वो उससे कम गर्म होती है। तो उससे क्या होती है कि लैंड के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है और वो हल्की होने के कारण ऊपर उड़ जाती है और वहाँ बन जाती है वैक्यूम। तो नदी की तरफ से पानी के ऊपर की जो हवा है वो कंपैरेटिवली ठंडी है, तो वो हवा लैंड की तरफ आती है, ठीक है, उस जगह को भरती है जो खाली हो गई, और उस आने वाली हवा को हम कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है। अब रात में क्या होती है शाम के बाद कि उस समय जैसे ही सनसेट हो जाती है तो लैंड ठंडी हो जाती है तुरंत, लेकिन पानी अभी भी गर्म रहती है पहले की अपेक्षा। दिन भर में वो गर्म होती है तो वो लैंड की अपेक्षा गर्म रहती है। तो इस समय जस्ट ऑपोजिट फिनोमेना होती है कि पानी के ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और वो राइज कर जाती है, वहाँ पर वैक्यूम बनती है, और लैंड की तरफ से जब जो अभी कूल हो गई है वहाँ से कूल एयर पानी की तरफ फ्लो करती है, बहती है, उसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं। ये हो गई सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अब दो प्रोसेस हम लोग पढ़ लिए हैं, एंड द थर्ड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ये कौन सी प्रोसेस है? रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है, लेकिन बिना किसी मीडियम का हेल्प लिए। कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में मीडियम की जरूरत पड़ती है। कंडक्शन में सॉलिड मीडियम की जरूरत पड़ती है और कन्वेक्शन में लिक्विड या गैसियस मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन रेडिएशन में बिना किसी मीडियम से हीट ट्रांसफर हो सकती है। जैसे वी फील हॉट व्हेन वी स्टैंड आउट इन द सन और व्हेन वी आर नियर ए फायरप्लेस। जब हम धूप में खड़े रहते हैं तो हम गर्मी को महसूस कर सकते हैं। जब हम कोई जलते हुए आग के पास खड़े रहते हैं तो हम गर्मी को महसूस करते हैं। तो वो गर्मी सन से हम तक या उस आग से हम तक जो पहुंचती है वो बिना किसी मीडियम का पहुंचती है, क्योंकि सन से जो हीट आ रही है तो सन और हमारे बीच ऐसी स्पेस में बहुत सारी जगह है जहां एयर भी नहीं है, यानी वैक्यूम है। तो उस वैक्यूम से भी हीट ट्रांसफ़र होकर आ रही है हम तक। तो ये प्रोसेस जिसमें कोई मीडियम के बिना ही हीट ट्रांसफ़र हो सकती है उसे हम रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं। और कोई भी गर्म वस्तु जब हीट को निकालती है अपने में से तो उसको रेडिएंट एनर्जी या रेडिएंट हीट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो रेडिएंट एनर्जी है ये बॉडी की कलर पर डिपेंड करती है। क्या जब ये रेडिएंट हीट किसी बॉडी पर पड़ती है तो बॉडी का कुछ हीट को बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कुछ हीट को बॉडी फिर रिफ्लेक्ट कर देती है। तो बॉडी की कलर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कौन सी कलर की बॉडी इस रेडिएंट हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और कौन सी कम एब्जॉर्ब करती है और कम ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो ब्लैक कलर की ऑब्जेक्ट होती है वो रेडिएंट एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और जो वाइट कलर की ऑब्जेक्ट है या शाइनी कलर की ऑब्जेक्ट, चमकीला सतह है, वो रेडिएंट एनर्जी को कम एब्जॉर्ब करती है। इसके लिए एक यहाँ छोटा सा एक्टिविटी बताई गई है कि हम 2 थर्मोमीटर लेंगे और दोनों थर्मोमीटर की जो क्लिनिकल थर्मोमीटर लेंगे, सॉरी क्लिनिकल नहीं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और उसके जो बल्ब की पोर्शन है उसमें एक में हम एक ब्लैक पेपर से रैप कर देंगे, दूसरे में एक वाइट पेपर से रैप कर देंगे।
अब दोनों को एक जलती हुई कैंडल से इक्वी डिस्टेंस यानी समान दूरी पर रखेंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ताकि उसकी हीट को वो महसूस कर सके। अब हम दोनों के टेम्परेचर में जो राइज होगा वो नोट करेंगे। तब हम देखेंगे कि ये जो ब्लैक कलर से रैप की हुई थर्मोमीटर है उसकी टेम्परेचर जल्दी जल्दी राइज कर रही है करस्पॉन्डिंग टू दिस थर्मोमीटर, जिससे हमें ये क्लियर पता चल रही है कि ब्लैक कलर की जो रैप की हुई बल्ब है वो हीट को ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर रही है और वाइट कलर से रैप की हुई बल्ब कम, मतलब उससे स्लो ऑब्जर्व कर रही है। तो इसी चीज़ की एप्लीकेशन हम लोग बहुत सारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। जैसे तुम दुकानों में देखोगे, खास करके चाय की दुकान या छोटी मोटी जो होटल्स होते हैं, वहाँ जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, खाना बनाने की जो कढ़ाई होती है या देगची होती है, उसके निचले वाले भाग या बाहर वाले भाग हमेशा काला ही रखा जाता है, उसको बिल्कुल साफ नहीं किया जाता है। तो ये क्यों रखा जाता है? ये पर्पसली रखा जाता है। द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज ऑफन केप्ट ब्लैक। ब्लैक होने से क्या होता है, जब उसको चूल्हे में हम चढ़ाएंगे तो वो चूल्हे की हीट को जल्दी ऑब्जर्व करेगा और उसमें रखी हुई पानी जल्दी गर्म हो जाएगी। वी प्रेफर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। तो जैसे ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है, वाइट कलर हीट को एब्जॉर्ब कम करती है। इसलिए गर्मियों में हम वाइट कलर का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं या लाइट कलर का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, ताकि ये हीट को कम एब्जॉर्ब करे और हमें कम गर्मी लगे। टी और कॉफ़ी पॉट्स, ये जो फ्लास्क वगैरह या टी कॉफ़ी रखने की जो बर्तन होती है, वह उसकी बाहरी सतह हमेशा चमकीला होता है, पॉलिश्ड होता है, ताकि उस पर जो बाहर से हीट पड़ रही है वो मिनिमम ऑब्जर्व हो, वो बाकी मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाए और उसके अंदर रखी हुई जो लिक्विड है उसकी टेम्परेचर ना बढ़ पाए या अगर गर्म है तो नहीं घट पाए, मतलब हीट की ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फायर ब्रिगेड, आग बुझाने की जो मशीनें हैं, उसमें जो पर्सनल जो आदमी आते हैं वो ब्रास का, चमकीला ब्रास का बना टोपी पहनता है। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पर आग लगी है उस जगह में जब वो जाते हैं तो आग में जो हीट होती है वो ब्रास कैप से रिफ्लेक्ट हो जाती है और एब्जॉर्ब कम होती है, जिससे उसे कष्ट कम होता है, मतलब हीट उसके शरीर में कम जाती है। ठीक है। फिर हमारी जो घरें हैं, घर के बाहर की दीवारों में हम लाइट कलर का पेंट लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे घरों को ठंडा रखे, रेडिएंट हीट को कम एब्जॉर्ब करे और हमारी घर ठंडा रहे। तो अब ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है, इसे मैं PDF में तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप में, और इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।